Good evening, everyone. In the previous class, I taught you all what actually verb is, okay? And then I taught the main classification of verbs as finite and non-finite verbs, clear? And I explained what actually the finite verbs are there. And then subtypes of finite verbs I discussed, auxiliary models will be taught separately as a chapter. Okay, and I have already taught models. I'll send you the YouTube link again, okay, of the models today. Don't worry. And that has been taught very nicely. And then the most importantly is main verbs. Okay, they are either transitive or intransitive verbs, and I have explained yesterday what transitive and intransitive verbs are. Okay, now let's proceed. Now the second one is non-finite verbs. So what actually non-finite verbs are? I told yesterday that finite verbs are controlled by the subject and tense and number and person of the subject. Clear? But non-finites are not, like to go, to play, all these. So in non-finite is a different chapter. I'll teach you all separately. And in that non-finite, they do not change with the subject or tense, and they cannot act as the main verb alone in a sentence. Types of non-finite verbs are infinitive, gerund, participle, and participle has present participle and past participle. Okay, there are almost 3 chapters. Clear? Infinitive has a chapter, gerund has a chapter, and participle has a chapter. Clear? That will be taught separately. So you need not to worry about that. Okay. So what is the main concern? I have started verb, and I'm going to teach you all action verbs. I mean the main verb. Clear? The main finite verbs. Okay. So you also must know all these little classifications, like based on form, regular and irregular verbs. Clear? A regular verbs, these form past tense and past participle by adding ed and d, like v2 and v3. How? Play, played, played, walk, walked, walked. These are called regular verbs, and those do not follow regular ed rules, like go, went, gone, ate, eat, ate, eaten. They are not following this rule. Okay, clear? So these are irregular verbs. Very simple. Okay. The most important thing we are going to learn is the forms of verbs, the main verbs. Clear? The main verbs. 5 forms of verbs. There are almost 5 forms of verbs, and they are namely like verb 1, verb 2, verb 3, verb 4, verb 5, and other name base form. Verb 1 is also called as base form or present simple form, like go. Okay, the meaning is like jana. And then verb 2, past simple. Okay, the other name for verb 2 is past simple, and the other name for v1 is base form or present simple. Clear? Like went, gaya. And verb 3, past participle, gone, gaya hua. Okay, past result. And then verb 4, present participle, ing form, like going, ja raha, ja rahi. Clear? Okay, this is the. And then verb 5, third person singular, present goes, jata hai, he, she. Clear? Anybody? You better know about the difference between verb 1 and verb 5. I'll teach you all. Okay. And there are other classification of verbs also. Like there are stative verbs, shows a state or not action. Clear? There are dynamic verbs. Okay. Shows action or process. There are linking verbs, connect subjects to complement. There are causative verbs, show someone causing someone else to do something. Okay. There are phrasal verbs. Okay. With verb and preposition and adverb. There are reflexive verbs, subject and object are the same. And there are impersonal verbs, do not refer to a person. Here are the examples. Okay, clear? Like stative verbs like know, love, believe, seem. Dynamic verbs like run, eat, write. Linking verbs like be, become, been, seem. Causative verbs make, let, have, get. Phrasal verbs give up, look after, take off. Reflexive verbs he hurt himself. Impersonal verbs rains, seems. Clear?
Do not refer to a person. It rains. It seems so. Clear? So we will learn each one of them. We will learn static verbs, dynamic verbs, linking verbs, one after the another. Okay? Clear? I'm just giving you the overview of the verbs. What are we going to learn in the upcoming chapters? Okay, in the chapter of verb. Clear? Now you must also know the relationship between verb forms, verb 1 and verb 5, verb 1 to verb 5 with their auxiliaries and models, along with their functions like negative, question, emphasis, progressive, perfect, etc. Clear? Then the verb 1, basically known as base form, present simple. Okay, which auxiliary do they take? They take do and does sometimes. Okay, to make, why do they take auxiliary? To make negative, to make question, and to put emphasis in present. And verb 2, past simple form, they take did to make negative, to make question, and to put emphasis in the past. Clear? And verb 3, past participle, have, has, had, they take auxiliary for perfect tenses, okay, and to make negative, question, and emphasis, other functions. And verb 4, present participle ing is MR was for continuous progressive tense, present past. Clear? Okay, for continuous or progressive tense, or either in present or in past. And verb 5, third person singular, he, she, it also takes auxiliary does when used for third person singular subjects in present simple. Clear? Like here, to make negative, question, and emphasis. This is the relationship between, I mean, verb 1 take do, most probably, V2 takes did, okay, V3 takes has, have, had, V4 takes all the BE group like is, MR, was, were, okay, and V5 takes does. Clear? But all these three, V1, V2, V5, they take does, do, did when they want to make number 1 negative, number 2 question, number 3 to put emphasis. समझ में आ रहा है? जब हम यहां पर डज कब लगाएंगे वर्ब 5 या डू वर्ब 1 में या डिड वर्ब 2 में कब लगाएंगे? जब हमें नेगेटिव बनाना हो, क्वेश्चन बनाना हो और एम्फेसिस करना हो, तब अफर्मेटिव सेंटेंस में, जनरल स्टेटमेंट्स में, जनरल सेंटेंसेस में हम डू डिड डज का यूज नहीं करेंगे इन वर्ब 1 to 5 में. लाइक आई टीच, हमने इसमें यूज किया आई टीच इंग्लिश, मैंने इसमें कोई डू डिड डज यूज किया नहीं. टीच वर्ब 1 है तो अफर्मेटिव है. लेकिन अगर मैं कहता आई डू नॉट टीच मैथमेटिक्स नेगेटिव में, तो डू यूज हो गया. डू आई टीच साइंस, क्या मैं साइंस पढ़ाता हूं? फिर डू का इस्तेमाल हो क्यों? क्वेश्चन. यस आई डू टीच इंग्लिश, एम्फेसिस. समझ में आ रहा है? तो यहां डू का यूज हो रहा है. क्लियर? शी डज कम, एम्फेसिस, और शी कम्स हियर, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन जब बात वर्ब 3 और वर्ब 4 के आए तो यहाँ अफर्मेटिव में लगाना मस्ट है. यहाँ अफर्मेटिव में नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ अफर्मेटिव में इनका होना जरूरी है. नेगेटिव में तो लगेगा ही लगेगा, क्वेश्चन में, एम्फेसिस में तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन यहाँ अफर्मेटिव में ही लगेगा. जैसे आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग में एम लग रहा है ना ऑक्सिलरी. आई हैव टॉट, ओके, यू हैव लर्नड, तो यहाँ अफर्मेटिव में भी लग रहा है. आई हैव नॉट टॉट, ओके, हैव आई टॉट, क्वेश्चन और नेगेटिव तो बन ही रहा है, लेकिन साथ में अफर्मेटिव में भी. तो इन दोनों वर्ब्स के साथ ऑक्सिलरी का ये रिलेशन रहेगा. ओके, अब आइए मॉडल्स ऑफ वर्ब का क्या रिश्ता रहेगा. ओके, तो मॉडल्स ये देखिए, ये मॉडल है कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये सब, ये सारे मॉडल्स के साथ क्या लग रहा है, देख रहे हैं? Only V1, base form of the verb. ठीक है? Clear? Very simple. So models will always take V1, that is fixed. Clear? Now, what is the prime consonant? So, verb की बात अगर कर रहे हैं तो एज सिंपल, चलो इसको बहुत सिंपल कर देते हैं. ठीक है, इसको इतना सिंपल कर देते हैं. अगर वर्ब की बात हो रही हो, पहले ये जान लो वर्ब क्या है.
वर्ब दरअसल स्केलेटल सिस्टम है। क्या है? स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी का ढांचा, जिस पर जो ऑर्गन्स और स्किन है और मसल्स हैं और वेन्स हैं, सारी चीजें उस पर अटकी हुई है। अगर हमारे बॉडी के स्केलेटल सिस्टम को हटा दो तो सारी चीजें यूं ही गिर जाएगी और उसका कोई वजूद नहीं होगा। ठीक उसी तरह से पूरी इंग्लिश के सेंटेंसेस को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस को, या किसी भी तरह के पैराग्राफ्स को अगर कोई पकड़ करके होल्ड करके स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो है वर्ब्स। आई बात समझ में? ये और बात जरूरी नहीं कि सिर्फ वर्ब्स हैं, लेकिन वर्ब वर्क्स एज अ स्टेम, तना के तौर पर काम करते हैं। ठीक है? तो वर्ब की बात होती है तो वर्ब दो ही कैटेगरी का होता है, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट। आई बात समझ में? और फाइनाइट ही तो मेन है, नॉन फाइनाइट तो वर्ब की कैटेगरी में आता ही नहीं है। वो बस दिखने में वर्ब लगता है लेकिन वो वर्ब नहीं होता है। यानी जेरेंड वर्ब वर्ब दिखता है लेकिन वो नाउन का काम करता है। इन्फिनेटिव वर्ब दिखता है लेकिन वो नाउन का काम करता है। पार्टिसिपल वर्ब दिखता है लेकिन कभी नाउन कभी एडजेक्टिव का काम करता है। आई बात समझ में? लेकिन जो मेन है फाइनाइट वर्ब में ऑक्सिलरीज आते हैं, मॉडल्स आते हैं और वर्ब 1 to 5 आता है। ऑक्सिलरी से 3 चैप्टर मैंने कर दिया है। अब हमारा रह गया है मॉडल्स। मॉडल्स का अलग से हम आपको करा देंगे। एंड देन क्या बच गया आपका? वर्ब 1 to 5। सो केस हम 1 to 5 को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, समझ रहे हैं? तो वर्ब 1 क्या है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है? ऑक्सिलरी इसमें क्या लगेगा? डू और डज लगेगा। कब? नेगेटिव बनाना हो, क्वेश्चन बनाना हो, एम्फेसिस बनाना हो। ये रूल्स याद रखना है दिमाग में। ठीक है? यहाँ दिया हुआ है, फॉर्मिंग क्वेश्चंस, मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस, एडिंग एम्फेसिस। नेगेटिव, आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्वेश्चन, डू यू लाइक chocolate? Emphasis, I do want to help you. With third person, he does not go to school. Okay? does कब लगेगा? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो। और अगर फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो डू लगेगा। डू एंड डज इज नॉट यूज्ड विद अफर्मेटिव सेंटेंस, विथ वर्ब 1। ओके, क्लियर है? और वर्ब 5, मैंने वर्ब 5 वर्ब 1 के साथ क्यों रखा? क्योंकि वर्ब 1 इज इक्वल टू वर्ब 5। किसमें? मीनिंग में। तो फर्क क्या है फिर? फर्क यही है कि V1 टेक्स ऑलवेज प्लूरल सब्जेक्ट एंड V5 टेक्स ऑलवेज सिंगुलर सब्जेक्ट, लाइक ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन। SN स्टैंड्स फॉर सिंगुलर नाउन। ऐसा कोई एब्रीविएशन नहीं है, ऐसा मैंने इसी लिख दिया है। एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक्स वी, दे और एनी PN, प्लूरल नाउन। और इनके साथ केस क्या है कि आई और यू जो है ना, ये भी वर्ब 1 के साथ ही आते हैं। और यहां वर्ब 1 के साथ डू और वर्ब 5 के साथ डज लगता है ऑक्सिलरी, जब हमें डज लगता है, जब हमें क्वेश्चन नेगेटिव और एम्फेसिस करना हो। समझ गए? तो वर्ब 5 वही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स, वही सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। एंड फंक्शन we used without auxiliary in affirmative sentences and with does in negative and questions. Affirmative, he goes to school, SES वाला। नेगेटिव, he does not go to school, then go बन जाएगा। जब भी एक चीज और है, जब भी does लग जाए verb 5 में, ओके, तो वो verb 1 में बदल जाएगा। तो रूल ये है कि does plus verb 1 is equals to verb 5। मीनिंग वही है। यानी verb 5 को अगर हमें does लगा के नेगेटिवली क्वेश्चन में बात करनी हो तो हम does तो लगा देंगे, लेकिन वो verb 5 नहीं रहेगा। he does not goes नहीं होगा, does not go हो जाएगा। ये बदलाव है। क्यों? क्योंकि does आ गया। ठीक है? डज डिफाइन कर रहा है कि वो verb 1 जो है ना, ये सब्जेक्ट कैसा लेगा। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा। verb 1 नहीं डिसाइड करेगा यहां पर कि कौन सब्जेक्ट लेगा। ओके, क्योंकि ऑलरेडी डज सामने आ गया। तो he does go, she does go, it does go, राहुल does go, अर्पित does go, निहाल does go। समझ में आ रहा है? इस तरह से यूज होगा। डज ही प्ले क्रिकेट? तो वर्ब 1 और वर्ब 5 की बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए। अभी डिटेल में पूरा इसको हम कराएंगे, डोंट वरी। अब आइए वर्ब 2, पास्ट सिंपल फॉर्म। ऑक्सिलरी इसमें डिड लगेगा, फॉर्मिंग पास्ट टेंस क्वेश्चंस। ओके, क्या करेंगे इसमें? हम
ऑक्सिलरी डिड लगाएंगे कब? वही क्वेश्चन बनाने के लिए, नेगेटिव के लिए और एम्फेसिस के लिए। और वर्ब टू का क्या काम है? पास्ट टेंस के क्वेश्चंस के लिए, मेकिंग पास्ट टेंस नेगेटिव्स, एम्फेसिस इन प्रेजेंट। नेगेटिव, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। और यहां भी वही केस है जो डज के साथ था, जब डिड लग जाए वर्ब टू की वजह से नेगेटिव बनाने के लिए, तो फिर वही वर्ब टू वर्ब वन में बदल जाएगा। जैसे आई गोइंग टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, बात बराबर है। क्लियर? डिड यू गो टू स्कूल, हम पास्ट टेंस को ही डील कर रहे हैं, डिड लग जाए तो पास्ट टेंस के लिए यूज हो रहा है। क्वेश्चन, डिड यू सी द मूवी, एम्फेसिस, आई डिड फिनिश माय वर्क ऑन टाइम। क्लियर? Even if the main verb was in past, verb 2, with did, we always revert to verb 1. Clear? Did is not used with affirmative sentence. Did कभी भी affirmative sentence के साथ use नहीं होता है। Very clear? सिंपल पास्ट टेंस में यानी पास्ट सिंपल फॉर्म में वर्ब टू का इस्तेमाल होता है, और वर्ब टू के इस्तेमाल में अफर्मेटिवली अगर बात करें, जैसे आई थॉट, आई वेंट, आई केम, आई प्लेड, आई सॉ, आई हर्ड, आई लिसन्ड, ओके, आई वॉच्ड, आई मेड, आई ब्रॉट। क्लियर? ये सब हमने पास्ट सिंपल फॉर्म में कह रहे हैं, लेकिन यही चीज हम नेगेटिवली करें तो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। आई डिड नॉट गो, वेंट की जगह गो हो गया। आई डिड नॉट सी, सॉ की जगह सी हो गया। आई डिड नॉट हर्ड, नहीं होगा आई डिड नॉट हियर। क्लियर? ये होगा। और क्वेश्चन अगर करेंगे पास्ट सिंपल फॉर्म में, तो डिड आई हियर, क्या मैंने सुना, क्या मैंने सुना, ये पास्ट सिंपल फॉर्म है। वर्ब वन सुन, अभी मैं बताऊंगा कि वर्ब वन के क्या मीनिंग्स होंगे, कितने मीनिंग्स होंगे, कैसे यूज करेंगे, वो सब अभी एक एक वर्ब को डिटेल में और पढ़ेंगे, अभी तो बस ओवरव्यू दे रहे हैं। क्लियर? अब आइए वर्ब थ्री। वर्ब थ्री पास्ट पार्टिसिपल, ऑक्सिलरी हैज हैव हैड तो इसमें लग रही है, परफेक्ट टेंसेस बनाएंगे, ठीक है, और इसमें अफर्मेटिव में भी लगेगा, इसमें पूरे हर जगह लगेगा। वर्ब थ्री के साथ हैज हैव हैड का यूज ऐसे है जैसे इनके बिना वर्ब थ्री हो ही नहीं सकता। यहां फिर रूल बदल जाता है, अगर जिस वर्ब थ्री के साथ हैज हैव हैड नहीं है वो वर्ब थ्री नहीं है, बात खत्म। समझ रहे? और नेगेटिव बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए भी यूज होता है। ओके, और प्रेजेंट use has, have in present and had in past. He has gone, they had finished the job, she will have reached. Future perfect के लिए, present perfect, past perfect, perfect tenses के लिए use होता है। काम हो चुका है, ये काम हो चुका होगा। And then verb 4, verb 4 present participle, ing form, auxiliary, ये सब यूज होगा। कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस के लिए यूज होगा, पैसिव कंटिन्यूअस के लिए यूज होगा, डिस्क्रिप्शंस एंड नॉन फाइनाइट यूसेज के लिए होगा। जैसे शी इज राइटिंग अ लेटर, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, आई विल बी कमिंग टुमारो। क्लियर? रनिंग इज गुड एक्सरसाइज। टू फॉर्म नेगेटिव एंड क्वेश्चन ऑक्सिलरी इज मस्ट। यहां भी वर्ब 4 का रूल ये है कि यहां भी ये इनका होना, इज, एम आर, वॉज, वर का होना मस्ट है। अगर वर्ब 4 अकेले आ गया, इज, एम आर, वॉज, वर नहीं है, तो वो वर्ब 4 ही नहीं है, भले दिखे वर्ब 4, वो पार्टिसिपल हो सकता है, वो जेरेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो 1 to 5 का बेसिक हमने ये चीजें आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी और चीज बताते हैं, वेट की। दरअसल ये वर्ब का क्लासिफिकेशन था, समझ रहे हैं? सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ब। ओके, तो हमने अभी आप लोगों को क्या वर्ब की क्लासिफिकेशन पढ़ाया, और वर्ब की क्लासिफिकेशन में, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्या बताया, वर्ब 1 to 5 है ना, तो वर्ब 1 to 5 अगर इंपॉर्टेंट है तो पूरी इंग्लिश उस पर डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहला हम लोग समझ लीजिए वर्ब 1 के समंदर में उतरेंगे। अब आगे उतर गए हम लोग वर्ब 1 के समंदर में, ठीक है। तो वर्ब 1 हैज 3 मेन मीनिंग्स एंड यूजेस। क्या? 3 मेन मीनिंग्स और यूजेस हैं। सबसे पहला जो वर्ब 1 का मीनिंग है वो है करो, जाओ, लाओ, बोलो। एक पैटर्न बनता है पूरा। When verb 1 is used alone, कब ऐसा मीनिंग देगा? जब वो अकेला आएगा। कहां? एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जगह कहां होगा? सेंटेंस के स्टार्ट में, यानी वर्ब 1 ही सेंटेंस को स्टार्ट करेगा। यहाँ स्टार्टर ही वर्ब 1 है, ड्राइवर ही वर्ब 1 है, यहाँ पर सब्जेक्ट ही वर्ब 1 है। वैसे सब्जेक्ट
वर्ब वन को नहीं कह सकते हैं, रॉन्ग हो जाएगा ग्रामेटिकली। आई मीन टू द बिगिनिंग, बिगिनर हो जाएगा। और क्या करेगा? इट गिव्स एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। सिंपल बोले तो इंपैरेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। इंपैरेटिव सेंटेंस की बात हो, क्लियर? जैसे गो, जाओ, बात खलास। ईट योर फूड, खाना खाओ। स्पीक द ट्रूथ, ओपन द कैमरा, कम हियर, कम क्विकली, गेट लॉस्ट। ये सब क्या है? इंपैरेटिव सेंटेंस। वर्ब वन का पहला मीनिंग। और क्या मीनिंग बन रहा है? आओ जाओ खाओ पियो, ओ वाला बोलो, सुनो, लिसन, देखो, लुक, समझो, अंडरस्टैंड, रुको, वेट, ठहरो, वेट, रुको, स्टे, बोलो, स्पीक, कहो, से, बताओ, टेल, दौड़ो, रन। आई बस समझ में? एंड वर्ब वन का दूसरा मेन मीनिंग, करता है, करते हैं, जाता है। ठीक है, जिसमें हम आदत की बात करते हैं, दिनचर्या, दिनचर्या मतलब अपना डेली रूटीन, सामान्य जनरल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। तो वर्ब वन इज यूज्ड विथ आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में इन सब्जेक्ट्स का वर्ब वन यूज होता है। और क्या मीनिंग देता है? ते हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं, आई टीच इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ते हो, तुम ईडन में पढ़ते हो। हाँ, हम रोज उठते हैं, हम रोज लेट से सोते हैं, वो यहाँ खेलता है, मिल्कमैन लेट से आता है। तो ये जो है, ये दूसरा मीनिंग है, आई गो टू स्कूल एवरी डे, दे प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, okay, we eat twice at night. And then the third one is करना, करने के लिए। V1 is also used with to plus infinitive, to plus खाना, खाने के लिए, करने के लिए। जैसे I want to go, go जाना, पूरा का पूरा इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर है। ओके, तीसरा मीनिंग, यानी हमें क्या करना होगा? पहला, एम्पैरेटिव सेंटेंस पूरा डिटेल में पढ़ना होगा वर्ब वन को, और बहुत सारी वोकैबुलरी करनी होगी वर्ब वन के साथ। फिर दूसरा, हमें अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझना पड़ेगा और बहुत ज्यादा वोकैबुलरी करना पड़ेगा। तीसरा, इन्फिनेटिव चैप्टर्स को समझना पड़ेगा। तो अलग अलग चैप्टर्स में हम कराएंगे। ओके, वैसे वर्ब वन के टोटल यूजेस सिर्फ 3 नहीं है। इंपैरेटिव, आप देखिए, इंपैरेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इन्फिनेटिव, 3 चैप्टर अलग अलग बनेंगे इसके। फिर उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव्स में यूज होगा, सब्जेक्टिव मूड में यूज होगा, अभी बताया ना, स्टेटिव, कंडीशनल क्लाउजेस में, ठीक है, इफ क्लाउजेस में, हेडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस में से यूज होंगे, आफ्टर व्हाई, आफ्टर हेल्प, आइडेमेटिक, फिक्स्ड एक्सप्रेशंस में यूज होंगे। क्लियर? समझ गए? चलिए।